Good morning, sir. Myself, Parth Sharma. I'm a student of class 12 in Ingraham Institute English School. We all know that independence of judiciary is indispensable in democratic system of governance. Under the written constitution, the government has been conferred with wide powers that are required for running of the government. In such type of functioning, the government may at times misuse the political power in manipulating the jurisdiction. Hence, an independent judiciary is required to maintain the balance between the interests of individuals and the society. So I want to ask, being an independent body, how does the judiciary maintain balance in the administration? Part 3 of the Indian Constitution provides fundamental rights. Under Article 13 of the Indian Constitution, the state cannot make any law which is against the fundamental rights. If any parliament or legislative assembly makes such law which violates fundamental right of the Indian citizens, the Supreme Court or High Court may declare ultra vires. In these circumstances, that law will not work at all. So there is restriction on the power of the parliament that no law can be made against the constitution itself. That is, in many cases, many PIL goes to the Supreme Court or High Court which violates the fundamental rights. In these cases, the government, the judiciary, the High Court or Supreme Court grants various writs. Such, have you heard the writ of prohibition, writ of certiorari, writ of mandamus, writ of habeas corpus? By these writs, the judiciary protects fundamental rights of the people. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Yasa Sodia of class 12 of Ingraham Institute English School. As we know that there are so many cases pending, so I would like to ask you a question that what steps judiciary is taking to clear the eyes of load of cases for the welfare of citizens. In our country, there are one judge against a 15 lakh population. That is the main cause. There we have very low infrastructure for the judiciary. Then lack of infrastructure is the basic cause of pendency of the cases. And second cause is strike of the advocates. We see almost 1/4 of the time waste due to the advocate strikes. In spite of that, the judiciary is working very well right now. We are going to the new modes, adopting new modes, and we are disposing that the Supreme Court has fixed the limit of deciding the case. It should be decided at least within 5 years. So I think we are progressing in this field. Any other questions? Only 2 questions. Yes, 2 questions. मैम आप कुछ बोल रही उसमें से कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप जो हमें बता पाए जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या आपका सोचने का या परसेप्शन चेंज हुआ हो, ऐसा कोई वाकया हो या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आप हमसे शेयर करना मांगेंगे या बच्चों को कुछ इंस्पिरेशन मिले? हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे कि किसी ने तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कोई कहता था मुझे राजपाट दे दो, कोई कहता मुझे सत्ता दे दो, कोई कहता पैसा दे दो। भगवान प्रसन्न होकर सर आशीर्वाद वरदान दे देते और तपस्या पूरी हो जाती थी। मेरा मानना ये है कि जो एजुकेशन है वो एक तपस्या की तरह है। यदि आपको अपने गोल पर पहुंचना है तो इतना टफ कंपटीशन आज के टाइम में है कि जब तक आप पूरी तरह डिवोशन आपका नहीं होता है, आप अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते हो।
मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस ये है कि यदि किसी भी अच्छी जॉब में जाना है तो उसके लिए अच्छी तपस्या करनी है और 12, 14, 15, 16 घंटे ये आपको आईटी करना है या मेडिकल में जाना है या जुडिशरी करनी है या आईएएस बनना है, सब में बहुत अच्छी तपस्या करनी पड़ती है। तो ये अपना एक गोल होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए और डिवोशन उसके लिए होना चाहिए, जरूर होना चाहिए मुझे ये काम करना है। जब तक हम गोल नहीं डिसाइड करेंगे तो वहाँ तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। बिना मंजिल डिसाइड किए हाँ। रास्ता नहीं तय हो सकता। एक्चुअली सर वांटेड टू आस्क कि जैसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इन ऑर्डर टू रिमूव द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इतने केसेस हैं फिर वो इतने वहाँ पे एडवोकेट्स क्यों नहीं रखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एडवोकेट्स क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, इतने ज्यादा क्यों नहीं? नहीं, एडवोकेट्स तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडवोकेट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज़्यादा है, इतने कहीं भी नहीं है। ओके, फैमिली कोर्ट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाने से पहले यू कैन गो टू द फैमिली कोर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स या सॉल्व द फैमिली मैटर्स। तो यही कहा जाता है ना कि हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इतने सारे प्रोविजंस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। फैमिली कोर्ट का फंक्शन डिफरेंट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन डिफरेंट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं वो सिर्फ फैमिली कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। उसके पीछे पर्पज ये है कि वहाँ पर एडवोकेट की एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है। वो फैमिली कोर्ट यदि ये देखती है कि कोई एडवोकेट उस काम को मैं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, तो उन्हें परमिशन नहीं देगी। उसके अलावा फैमिली कोर्ट का पर्पज है कि फैमिली की हार्मोनी को बचाना, एक आपस का मतलब उन्हें सुलह कराने का प्रयास करना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है फंक्शन है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस डिसाइड करना। अब आपका सवाल ये था कि हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम करने के लिए नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बेसिकली दिस द ट्रायल कोर्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के केस यहाँ पे होते हैं। अब हाई कोर्ट बेसिकली है अपीलेट कोर्ट, उसका फंक्शन डिफरेंट है। लेकिन जो ट्रायल होते हैं उसके अंदर लेंथी प्रोसीजर है, उसके अंदर पहले पार्टीज को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात कहने की, उसके बाद दोनों पार्टीज की एविडेंस होगी, उसके बाद आर्गुमेंट होगी, उसके बाद केस डिसाइड होगा। तो एक लेंथी प्रोसीजर है, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट्स में ज़्यादा टाइम लगता है। और अपीलेट कोर्ट चूंकि उसे सिर्फ एक बार आर्गुमेंट सुनकर डिसाइड करना है, हाई कोर्ट में टाइम कम लगता है। लेकिन अभी जैसे यूपी की स्थिति है, यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस जो है हाई कोर्ट में बहुत कम है। जैसे स्ट्रेंथ 160 है तो अपॉइंटेड जजेस हैं ओनली 100 टाइम। तो जब तक पूरा जजेस अपॉइंट नहीं किए जाएंगे तब तक वो डिस्पोजल नहीं हो सकता, पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। हाँ। अब इसके पीछे ना अभी एक पीआई पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसका नाम है मलिक मजहर सुल्तान केस, बहुत फेमस केस है। सुप्रीम कोर्ट हर साल ये रिव्यू करती है कि कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं जजेस की, और गवर्नमेंट को उसमें डायरेक्शन देती है कि हम टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर ये सारी वैकेंसीज फिलअप की जाएं। उसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड होने चाहिए, उन्हें डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जो अंडर ट्रायल के केसेज हैं, अब जो बाद में तय होगा कि वो आदमी गुनहगार है या निर्दोष है, या तो यदि वो 5-7 साल उन्हें बिना मतलब की जेल काट ली तो उसको तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। तो अंडर ट्रायल के केसेस, सीनियर सिटीजन के केसेस, वुमेन केसेस, रेप केसेस हम प्रायोरिटी पे तय करते हैं। थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर। सर एक चीज मैं भी पूछना चाहती हूँ कि जो है आजकल हम देखते हैं कि आम आदमी जो है वो जुडिशरी के पास या न्याय व्यवस्था इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, वो नहीं जाना चाहता। उनका यही कहना है कि वहाँ जाओ तो सिर्फ एक ही काम होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसका क्या कारण है, क्यों आम आदमी घबराता है जाने से? बेसिक कारण है डिले इन डिस्पोजल ऑफ द केसेस। जब तक केसेस का डिस्पोजल फास्ट नहीं होगा तब तक आम आदमी की सोच इसी तरह से रहेगी। अब जो भी डिले
होने के पीछे रीजंस हैं, उन सबको वहाँ सोचना पड़ेगा। उसके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट कोर्ट में होना चाहिए। एडवोकेट्स और जजेस सबको पूरी मेहनत से केस को डिस्पोजल करना पड़ेगा, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी डिस्पोजल। तभी जनता का विश्वास उसमें कायम रह पाएगा। नहीं तो आम आदमी आज बचता है हाँ। कि अपने लेवल पे ही वो सुलझाना चाहता है कि कुछ ले दे के काम हो जाए, वहां जाने पे हमारा कोई भी केस है जल्दी सेटलमेंट कर आपस में सेटल लें। हाँ। हाँ, हाँ। तो उसके पीछे रीजन ये है कि डिले हो रहा है केसेस में फास्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा जितने कि होने चाहिए। कुछ प्रोसेस भी जटिल या कठिन है जो आम आदमी को जल्दी समझ में भी नहीं आता। वो जाता है तो यहाँ जाइए वहां जाइए, पहले ये करवाइए, फिर ये कागज लाइए, फिर वापस जाइए, फिर ये कागज लाइए। एक बार में प्रॉपरली उनको गाइडेंस मिल नहीं पाती। जो आपके एडवोकेट्स तो पार्टी खुद ही अपॉइंट करती है ना जी। अब उसे यदि वो किस एडवोकेट को अपॉइंट कर रही है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसका एडवोकेट अच्छा है तो सही से गाइड करेगा उसे बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि उसका एडवोकेट उसे कंफ्यूज करता है तब ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कोर्ट क्या कर सकती है।